Hello students and learners, welcome to the Brainbox tutorials. I am your teacher Priyanka and today we will solve specimen question paper of chemistry for ICSE 2023 examination. So let us start with section A. लिखा है attempt all questions from this section. So first of all question number 1 है MCQ which is for 15 marks यानी कि एक मार्क का एक है 15 MCQs मिलेंगे हमको. So first one is a weak electrolyte is Options are A. Alcohol, B. Potassium hydroxide, C. Ammonium hydroxide and D. Glucose. इसमें देखो A और D अल्कोहल एंड ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. अब बचता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग अल्कोलाइट है यानी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड. Coming to number 2, electron affinity is maximum in A. alkaline earth metals, B. halogens, C. inert gases and D. alkali metals. So electron affinity जैसे जैसे हम पीरियड में राइट की तरफ जाते हैं बढ़ती जाती है. That means electron affinity is maximum in halogen. inert gases को हम इंक्लूड नहीं करते electron affinity के लिए because they are inert, they are inactive. Number 3, the main components of bronze are, so main components of bronze देखो option A copper tin, option B copper iron, option C copper lead and option D copper and zinc. Bronze में आता है copper and tin का mixture, so option number A is the correct option. Number 4, a polar covalent compound is A. methane, B. ammonia, C. nitrogen, D. chlorine and the correct option will be B. ammonia. Number 5, an acid which has two replaceable hydrogen ions. Number A, acetic acid. Acetic acid's formula is CH3COOH. So it has 4 hydrogen but only one replaceable hydrogen ion. So not acetic acid. Number B is hydrochloric acid, that is HCl, only one replaceable hydrogen. C is phosphoric acid and that also has one replaceable hydrogen. D is carbonic acid, H2CO3. So H2CO3 it has 2 replaceable hydrogen ions. Correct option D. Number 6, the hydroxide which is soluble in excess of NaOH is A. ferric hydroxide, B. lead hydroxide, C. copper hydroxide and D. calcium hydroxide. Correct option will be B. lead hydroxide. Number 7, if the RMM is relative molecular mass of carbon dioxide is 44, then its vapor density is just half of molecular mass, that is 22. So correct option will be A, 22. Coming to number 8, drying agent used to dry hydrogen chloride gas is A. concentrated sulfuric acid, B. calcium oxide, C. sulfurous acid and D. calcium hydroxide. Correct option is A. concentrated sulfuric acid. Number 9, the catalyst used in the Haber's process is A. molybdenum, B. platinum, C. nickel, D. finely divided iron and the correct option will be D. finely divided iron. Number 10, an aqueous compound which turns colorless phenolphthalein to pink. That means this compound should be alkaline in nature or basic in nature. So option A, ammonium hydroxide, B. nitric acid, C. anhydrous calcium chloride and D. sulfuric acid. Correct option is A. ammonium hydroxide. Number 11, the gas formed when carbon reacts with concentrated sulfuric acid. The options are A. hydrogen, B. sulfur trioxide, C. sulfur dioxide, D. oxygen and the correct option is C. sulfur dioxide. Coming to number 12, the organic compound prepared when ethanol undergoes dehydration. So what will be the organic compound forms? So formula of ethanol is C2H5OH. Now from this, if water is taken out, that means it is dehydrated. So H2O निकाल दो तो H4 बच जाता है यानी ये होता है C2H4 और C2H4 है D-ethene. So correct option is D-ethene. Number 13, the IUPAC name of methyl acetylene is A. propyne, B. ethene, C. propane, D. ethine.
Methyl acetylene will be A. Propyne. Number 14. The product formed at the cathode in electroplating of an article with nickel is A. Hydrogen gas, B. Nickel ions, C. Nickel atoms, D. Oxygen gas. See, the product is forming in the cathode. कैथोड में कैटायंस आ रहे हैं यानी पॉजिटिव आयंस आएंगे, तो A और D तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया. अब बचता है निकल आयंस एंड निकल एटम्स. निकल आयंस माइग्रेट होते हैं वहाँ तक, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है निकल एटम्स. C. Number 15. An alkali metal found in period 3 and group 1 is. Number A is magnesium. Magnesium का एटॉमिक नंबर होता है 12. 12 का मतलब हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,8,2. ओके, सो ये तो पीरियड 3 है बट ग्रुप तो इसका 2 हो गया, तो ये नहीं हो सकता. देन आता है लिथियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 है, इसका मतलब ये हो गया 2,1. सो ये पीरियड 2 में आ रहा है, भले ग्रुप 1 में हो लेकिन पीरियड 2 है. सोडियम है 11 एटॉमिक नंबर, सो सोडियम का हुआ 2,8,1. सो इसका पीरियड 3 भी है, ग्रुप 1 भी है, तो ऑब्वियसली यही होगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सोडियम. Now question 2 part 1. The diagram shows an experiment setup for the laboratory preparation of a pungent smelling gas. The gas is alkaline in nature. ये हमको 2 हिंट दे दिया कि वो जो भी गैस है वो पंजेंट स्मेल करती है और एल्कलिन इन नेचर है. अब ऑप्शन ए पूछ रहा है नेम द गैस कलेक्टेड इन द गैस जार, तो उससे उस ऑप्शन से उस हिंट से हमको पता चल जाता है दैट इट इज़ अमोनिया. सो अमोनिया गैस हमको मिल रहा है, ये हमको पता चल गया. नाउ नेक्स्ट पार्ट है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव प्रिपरेशन. सो हियर इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन. 2NH4Cl plus CaOH twice. When they are heated they make CaCl2, that is calcium chloride, plus 2H2O plus 2NH3, that is ammonia gas. Now number C is how is the gas being collected. तो गैस कलेक्ट होता है बाय द मेथड ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर, और ये वाटर के से कलेक्ट नहीं होता बिकॉज इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर. नंबर डी है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग वाई. सो लेट अस सी द डायग्राम. सो देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाई वाला पोर्शन है. दिस इज़ ड्राइंग एजेंट. ड्राइंग एजेंट यहाँ पे जो अमोनिया के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड. सो यही हमको यहाँ पे लिखना है. क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग वाई. सो लिखोगे वाई इज़ कैल्शियम ऑक्साइड यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट. Now next question E है how will you find that the jar is full of gas. So Cl में डिप करके हम एक ग्लास रॉड लाएं तो डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl निकलेगा, वही हमारे लिए हिंट होगा. सो कैसे लिखोगे इसको? लिखा है हाउ विल यू फाइंड दैट द जार इज फुल ऑफ गैस. तो लिखोगे इफ अ ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl is brought near the mouth of the gas jar and dense white fumes of ammonium chloride is formed, that means jar is full of ammonia gas. Now 2 part 2 है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स A विथ कॉलम B. ओके, देखते हैं. सो कॉलम A में पहला है A एसिड सॉल्ट. यहाँ पे पांचों ऑप्शन में देखते हैं एसिड सॉल्ट कहाँ है, तो ये हमको दिख रहा है नंबर 4 में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इस सॉल्ट में हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये एसिड सॉल्ट है. ओके, नाउ नेक्स्ट है B कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक इन कलर, तो इसके लिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नंबर C है जिंक हाइड्रोक्साइड. जिंक हाइड्रोक्साइड होता है सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन 5 विल बी करेक्ट. D है कॉपर मेटल. कॉपर मेटल का कलर होता है रेडिश ब्राउन, सो 2 इसके लिए करेक्ट होगा. एंड लास्ट E है पोलर कंपाउंड. सो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो पोलर कंपाउंड है,
और लास्ट ऑप्शन भी यही बचता है। ऐसे में अगर तुम लोगों को मैच द फॉलोइंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमेशा हम जो हमको आता है हम पहले वो कर लेते हैं, जरूरी नहीं हम सीरियल वाइज करें। तो उससे जो बचता है, कई बार हमारे ऑप्शन इसलिए सारे करेक्ट हो जाते हैं कि जो हमको आता था वो हमने पहले सॉल्व कर दिया, अब जो नहीं आता है उनमें से चूज करना ईजी हो जाता है। नाउ कमिंग टू 2 पार्ट 3, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ब्रैकेट। पहला दिया हुआ है ए, अमोनिया इन द लिक्विफाइड फॉर्म इज न्यूट्रल और बेसिक। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी न्यूट्रल। जब एक्वस फॉर्म में होता है तब वो बेसिक होता है, लिक्विफाइड फॉर्म में वो न्यूट्रल रहता है। नंबर बी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका वाटर है। नंबर सी, एन इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज आयरन और प्लेटिनम। द करेक्ट ऑप्शन इज प्लेटिनम। नंबर डी, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड इज एल्कीन्स एल्काइंस। सो डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स होते हैं, एल्काइंस तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। नंबर ई, एन एल्कलीन गैस गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अभी अभी हमने किया ये पार्ट, अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स निकलते हैं। नाउ कमिंग टू नंबर 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। उसमें ए है द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। नंबर बी, अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। ऐसे सब्सटेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसा क्वेश्चन करते वक्त हमेशा एक एग्जाम्पल भी दे दिया करो। तो फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं NaCl। Now number C, the energy required to remove an electron from the valence shell of a neutral isolated gaseous atom। ये तो डेफिनेशन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, तो यही उसका आंसर भी होगा। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो। Now number D, the name of the process by which the bauxite ore is concentrated, उसको बोलते हैं Bayer's process. Now number E, the bond formed by a shared pair of electrons with both electrons coming from the same atom। देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, बट जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। जैसे इसमें भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल होगा अमोनियम आयन हो गया इसका एग्जाम्पल। नाउ 5 पार्ट ए है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। ओके, नंबर 1 है 2 पेंटेनॉल। सो सबसे पहले देखो पेंटन मतलब 5, तो 5 तो कार्बन है हमारे पास में, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5। अब 2 में है पेंटेनॉल, ऑल मीन्स अल्कोहल है, वो है 2 में, तो 2 में हम बना रहे हैं। इसका मतलब ये अगर हम 2 नंबर लें तो 2 नंबर में हम यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ तो हमारे पास में OH है। अब बाकी बचे हुए पार्ट को हमको हाइड्रोजन से भरना है, 4 पूरे बॉन्ड ख़त्म करने हैं हमको। तो ये 1 2 3 4, इसका 1 2 3 ये 4 बचता है, 1 2 ये 3 और 4, इसका 1 2 तो ऊपर 3 नीचे 4, ये 1 सो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। और अब हमको सब में हाइड्रोजन भरना है और इस तरीके से सारा हाइड्रोजन भर दोगे। सो दिस इज 2 पेंटेनॉल। नंबर 2 इज इथेनॉल। सो इथन से से हमको पता चलता है कि 2 कार्बन है, तो 1 एंड 2 कार्बन तो हमने लगा दिया। अब ये इथेनॉल है यानी ये एल्डिहाइड है, तो CHO होगा, तो इसके यहाँ डबल बॉन्ड से O लगा दिया और एक सिंगल बॉन्ड से H लगा दिया, ये CHO कंप्लीट हो गया। बाकी बचे हुए पार्ट में हमको बॉन्ड क्रिएट करने हैं जो 4 होने चाहिए, तो 1 तो यहाँ है, ये 2 ये 3 और ये 4 बॉन्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमको H लिखना है और ये हमारा कंप्लीट हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इथेनॉल। नेक्स्ट है हमारे पास 1 ब्यूटीन। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन हो गए, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट,
और उसमें भी 1 में ईन है यानी डबल बॉन्ड है, तो इसको हम ऐसे करेंगे कार्बन, और ये 1 नंबर है तो इसमें हमारे डबल बॉन्ड लग गए। फिर सेकंड कार्बन आया, थर्ड कार्बन आया और फोर्थ कार्बन आ गया। अब 1 में हमारा ब्यूटीन दैट इज़ डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी लग ही चुका है। अब बाकी 4 बॉन्ड क्रिएट करके हमको हाइड्रोजन लगाने हैं। तो इसमें 1 2 है, 3 कर दो, 4 कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। 1 2 3 इस कार्बन में एक लगाने हैं, 4 1 2 है तो 3 और 4 यहाँ लग गए, और यहाँ 1 है तो 2 3 एंड 4 यहाँ हमको हाइड्रोजन लगाना है। और ये हो गया हमारा 1 ब्यूटीन फिनिश्ड। Now coming to number 5 part B, name the following organic compounds in IUPAC system. नंबर 1 में देखो सबसे पहले हम कार्बन काउंट करते हैं, 4 हैं, मिथ इथ प्रॉप बुट, सो ये बुट हुआ, और लास्ट में O डबल बॉन्ड से लगा हुआ है और H भी लगा हुआ है, सो ये होगा 1 ब्यूटेनॉल, या फिर तुम इसको सिर्फ ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो। नाउ ये एक ट्रिकी पार्ट दे दिया है। देखो अगर हम लास्ट वाला पार्ट देखें तो हमको लगता है कि ये CHO है, तो CHO है तो हम ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, बट रिमेंबर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक हाइड्रोजन से और एक कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, और ब्यूटेनॉल में क्या होता है, कार्बन ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बॉन्ड बनाया हुआ होता है। बट यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो C से जुड़ा हुआ है लेकिन H C से नहीं जुड़ा हुआ, सो ये ब्यूटेनॉल नहीं है, ये ब्यूटेनॉल है। नाउ कमिंग टू नंबर 2, नंबर 2 में देखो 3 कार्बन है, मिथ इथ प्रॉप, तो ये प्रॉप है, और 3 इसके बॉन्ड दिए हुए हैं यानी कि ये एल्काइन है, तो ये प्रोपाइन है। इसमें नंबर 1 में लिखा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नंबर 1 में, तो तुम इसको 1 प्रोपाइन भी बोल सकते हो। So here we have completed section A of chemistry paper, ICSE specimen paper of ICSE 2023। इसको करोगे, नेक्स्ट पार्ट अगर सेक्शन B भी अपने आप सॉल्व कर सकते हो तो ज़रूर करो, और जब मैं वीडियो लेकर के आऊँगी तो उससे तुम लोग टैली भी कर सकते हो कि कितना करेक्ट हुआ और कहाँ मिस्टेक हुई। इससे तुम्हारा ही प्रिपरेशन अच्छा होगा। सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, study hard, and if you have liked this video, please do not forget to like it, comment on this video and share it with your friends, because sharing is caring. Bye bye, Jai Hind.